Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying chapter 8, journal, and we are about to finish the chapter. Some specific transactions are remaining to be noted that I am giving you today, and we will do it. So next topic for you is, next transaction is purchase of fixed assets. Whenever we purchase fixed assets, all of us know that an asset is being increased, so fixed asset account will be debit. It may be machinery, plant, machinery, furniture, computer, building, anything. And if we are paying cash, we will credit cash account. If we are paying through check, we will credit the bank account. And if we are purchasing on credit, then we will credit the vendor account. Vendor is another name of creditor. So this will be the journal entry. Narration is being asset purchased. Being asset purchased. तो जब भी अपन असेट खरीदते हैं तो एंट्री होती है असेट टू कैश या फिर बैंक या फिर वेंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. नाउ व्हेन वी सेल असेट, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट to fixed asset. Whatever price we receive will be written over here. So you have to put the topic when asset is purchased and when asset is sold. So whenever asset is sold, the real account is going out from the business, so it will be credited. And we are receiving cash or check, then cash or bank account will be debited. If bank is the receiver, bank account will be debited. If we are receiving cash, cash account will be debited. And normally assets are not sold on credit, so we are not writing any debtor account here. If it is there, you can write narration is being asset sold. Now when we sell assets, there may be profit or there may be loss. So you write down when there is profit, or we say gain. When we sell assets, its profit is known as gain. So entry will be asset account debit, or you can write fixed asset account debit to profit and loss अकाउंट. क्योंकि आपको प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी सेलिंग प्राइस परचेजिंग प्राइस से ज्यादा होगी. तो हमने फिक्स एसेट को ज्यादा क्रेडिट कर दिया जब सेल करा, मगर एक्चुअली में उसकी कॉस्ट कम है, इसलिए हम फिक्स एसेट को वापस डेबिट कर देंगे और जो प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट में क्रेडिट होता है. तो यहाँ आ जाएगा टू P&L अकाउंट. बीइंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट रिकॉर्डेड. बीइंग प्रॉफिट ऑन sale of fixed asset recorded. Next is when there is loss. When there is loss on sale of fixed asset, its entry will be P&L account debit to fixed asset account. Because there is loss, we will debit P&L account and we will credit the asset account. Being loss on sale of fixed asset recorded. Being loss on sale of fixed asset recorded. Next topic is next point is expenditure on installation of machinery and construction of building. When we purchase any machinery and we pay any expenditure on such purchasing, like we are paying for the installation of machinery, we are paying for the renovation of the new machinery purchase, or any expenditure or at the time of purchase will be added to the purchase price of the machine. So write down expenditure on installation of machinery
और कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो उसकी एंट्री क्या होगी? अगर मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर बिल्डिंग है तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट हो जाएगा कैश और बैंक अकाउंट। तो आप लोग फिक्स एसेट ही लिख लीजिए, इसमें भी फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। Being installation expenses paid. Next is sundry expenses, or also known as miscellaneous expenses. There are many small expenditure, petty expenditure in the business which cannot be given a separate heading. There are many expenses like some small expenses like some small repair, or it may be some small gift purchase for anyone, a matchstick purchase. So there are so many little expenditure. We cannot give a separate heading for any such expenditure. So we make a separate account, that is spelling is MISCELLANEOUX, and also it is known as sundry expenses. So miscellaneous or sundry expenses are petty expenses or little expenses which cannot be given separate heading. So its entry will be same as expenditure paid. So entry will be miscellaneous expenses account debit to cash or bank. Okay, this is done. Today we will study adjustment entries. Write down next topic, adjustment entries. Write down adjustment means those transactions which are related to current year but are not yet recorded. So these are those transactions and events which are related to current year but are not yet recorded. इसके अंदर आप सबसे पहले लिखिए क्लोजिंग स्टॉक. Closing stock is the value of unsold stock in our godown. So the stock which is not sold during the year and which remains in the godown is known as closing stock at the end of the year. And this closing stock becomes the opening stock in the next year. इस साल के एंड में जो गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा, और अगले साल के लिए वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा. इसकी एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट. नरेशन इज बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अपनी असेट है इसलिए डेबिट होगी. ट्रेडिंग अकाउंट अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी तक सेल नहीं हुआ, मगर इसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो हमारी कॉस्ट में से लेस होगी. या फिर आप ये मान लीजिए कि इसको हम एक तरीके से अपनी इनकम मान लेते हैं, क्योंकि जो गुड्स सेल नहीं हुए उनकी जो मार्केट वैल्यू या कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर उस पर हम रिकॉर्ड करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में इसको क्रेडिट करते हैं, क्योंकि ये भी हमारी एक स्टॉक है, हमारा असेट्स का पार्ट है. तो क्योंकि इसको
ये इस साल बिका नहीं, जिसको कॉस्ट में से लेस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, इतना भी आप लोग समझ लीजिए। और इससे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। इसके बारे में हम चैप्टर 18 में जब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तब और डीप में समझेंगे। अभी आप लोग इसका नरेशन लिख लीजिए, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्डेड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी एक एडजस्टमेंट है, क्योंकि हमने, इसका मतलब ये होता है एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड। सो एनी एक्सपेंडिचर which has been due in the current year, which has to be paid, which was to be paid but not paid yet because of any reason, it is known as outstanding expenses. I think we have already discussed outstanding expenses before also. So it is an adjustment and it is an expense of current year. So we will debit the expense and credit the outstanding expense. From traditional point of view, it is a representative personal account, and from modern point of view, it is a liability, because anything which is not yet paid is to be paid in future, and whatever is payable in future is our liability. So we will credit the outstanding expenses account and we will debit the expenses account, because this is the expense of current year. All current year expenses are to be debited in the current year to calculate the actual profit according to the accrual concept, which is also in our books. In chapter 3 we will study. So entry will be expense account debit to outstanding expense. ये एडजस्टमेंट क्यों है? क्योंकि इसकी एंट्री अभी तक नहीं हुई हमारी बुक्स में, मगर इसको रिकॉर्ड करना जरूरी है सही प्रॉफिट निकालने के लिए। इसका नरेशन होगा बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। थर्ड इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। राइट डाउन प्रीपेड एक्सपेंसेस। इट मीन्स expenses which are paid in advance for the next year. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ खर्चे करंट ईयर में ही पे कर देते हैं, मगर वो खर्चे नेक्स्ट ईयर तक चलते हैं। जैसे मेरा जो अकाउंटिंग ईयर है वो है अप्रैल से मार्च, मगर जब मैं अपने व्हीकल का इंश्योरेंस कराऊंगा तो मैं कोई से भी महीने में करा सकता हूँ। तो मैंने फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कराया व्हीकल का जनवरी में, अब मेरा जो ईयर है वो तो मार्च में ही खत्म हो जाएगा। तो मेरा इस साल का इंश्योरेंस कितना सा हुआ? जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 months आर रिलेटिंग टू करंट ईयर। बट इफ यू नो, इंश्योरेंस का प्रीमियम अधिकतर 1 साल का होता है। तो इसका मतलब मैंने अगर जनवरी में करंट ईयर में इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा तो वो नेक्स्ट जनवरी तक पे हो गया। मगर अब देखा जाए ध्यान से तो उसके 3 months तो हमारे करंट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं और नेक्स्ट 9 months नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहे हैं, मगर हमने पे तो अभी कर दिया ना। तो वो जो नेक्स्ट 9 months का एक्सपेंडिचर है वो हमारे लिए कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। वो हमारी असेट होती है, इसलिए हम उसको डेबिट कर देते हैं, मगर वो एक्सपेंस हमारी बुक में अभी तक भी एक्सपेंस अकाउंट नाम से डेबिट है। जबकि मैंने अभी आपको समझाया कि उसमें से कुछ पार्ट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो हमको उस पार्ट को एक्सपेंस अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग प्रीपेड एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड इन बुक्स। नेक्स्ट इज accrued income. Accrued income means income which is earned but not received. इनकम हमने अर्न कर लिया मगर हमको अभी तक इनकम रिसीव नहीं हुई। ऐसा होता है कई बार, जैसे हमने एफडी करवा रखी है और एफडी का इंटरेस्ट हमने इस साल 6 महीने का अर्न भी कर लिया, मगर वो एक्चुअली हमें रिसीव कब होगा? जब वो एफडी मैच्योर होगी। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, जैसे बैंक वगैरह में अपन कराते हैं। तो हमने इस साल जो उसका इंटरेस्ट अर्न कर लिया वो हमें इस साल रिसीवेबल नहीं है, क्योंकि वो पैसा कब मिलेगा? जब एफडी मैच्योर होगी। मगर अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पैसा हमने इस साल अर्न कर लिया रिसीवेबल
भी है वो हमें इसी साल रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, चाहे वो बाद में मिले कोई दिक्कत नहीं। तो उसको हम बोलते हैं एक्रूड इनकम। वो अपनी असेट होती है, इसलिए वो डेबिट होगी। पॉइंट नंबर 4, तो इसकी एंट्री होती है एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। ये भी एडजस्टमेंट है क्योंकि अभी तक इसकी रिकॉर्डिंग हमारी बुक्स में नहीं हुई। इनकम अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, हमने अर्न कर ली मगर हमें रिसीव नहीं हुई थी, इसलिए अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो हमारी इनकम इंक्रीज होगी, तो इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और एक्रूड इनकम को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि ये अभी हमें लेना बाकी है किसी से, तो ये हमारी असेट है, इसको हम डेबिट करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक्रूड इनकम, और मॉडर्न अकाउंटिंग के हिसाब से ये है असेट। नेक्स्ट लिखिए आप लोग एडवांस इनकम। एडवांस इनकम, इसका नरेशन भी वही हो जाएगा, बीइंग एक्रूड इनकम रिकॉर्डेड। एडवांस इनकम वो इनकम होती है जो हमने अर्न नहीं करी, हमें वो एडवांस में रिसीव हो गई। हमारे किसी जिससे भी हमको इनकम मिलती है उसने हमको एडवांस अगर पैसे जमा करवा दिए तो वो हमारी कहलाएगी एडवांस इनकम। इट इज आवर लाइबिलिटी, क्योंकि हमने जो चीज अर्न ही नहीं करी और उसने हमको वो चीज पे कर दी है, इट मीन वो क्या है, वो हमारी लाइबिलिटी है। तो ऐसी इनकम को हम पहले इनकम अकाउंट में डेबिट करेंगे क्योंकि ये हमारी करंट ईयर की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसलिए इनकम को रिड्यूस कर देंगे, इनकम अकाउंट डेबिट। इनकम डेबिट होती है अगर रिड्यूस होती है तो एज पर द मॉडर्न अकाउंटिंग। और एडवांस इनकम क्रेडिट होगा क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी है, एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड व्हेन इंक्रीज्ड, सो दिस इज आवर लाइबिलिटी। जब तक हम इस इनकम को अर्न नहीं कर लेंगे तब तक हम इसको क्या मानेंगे, हमारी लाइबिलिटी मानेंगे। being advance income recorded in books. Next is depreciation, which we already know, but it is also an adjustment because depreciation हम साल के बीच में नहीं लगाते, depreciation भी एक adjustment है। हमने पढ़ा था कि हम उसको एक estimate के हिसाब से निकालते हैं और हम हमारी बुक्स में assets की वैल्यू को सही वैल्यू पे लाने के लिए depreciation लगाते हैं। तो उसकी एंट्री होगी depreciation account debit to asset account। depreciation means, आप चाहें तो लिख लें, depreciation means loss in the value of asset due to wear and tear, accidental losses and obsolescence। obsolescence का मतलब होता है जब किसी चीज की टेक्नोलॉजी खत्म हो जाती है या उसकी डिमांड खत्म हो जाती है तो उसकी वैल्यू जो रिड्यूस होती है उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट या ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस की स्पेलिंग है OBSOLESCENCE, ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस, तो इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बीइंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड इन बुक्स। और ऐसे भी लिख सकते हैं बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट, ऐसे लिखिए आप बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन असेट। और डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड असेट पर ही लगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक कॉन्सेप्ट है जो अधिकतर बहुत कम लोग फॉलो करते हैं प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि बिजनेस जो है वो ओनर को इंटरेस्ट देगा उसकी कैपिटल पर। क्योंकि हमने पढ़ा है कि बिजनेस को अलग माना जाता है अकाउंटेंसी में और बिजनेसमैन को अलग माना जाता है। तो
तो अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो वो उस पर इंटरेस्ट लेने का हकदार है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि बिजनेस पे करेगा प्रोप्राइटर को, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बुक्स के अंदर डेबिट होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। और वो कैपिटल को मिलता है यानी कि ऑनर को मिलता है, तो उससे कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होता है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसकी एंट्री आप लोग याद रखें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, it is the interest which is provided by business to businessman on his capital. So its entry is interest on capital account debit to capital account. Being interest provided on capital is the narration. Being interest provided on capital, narration आपको सारे लिखने हैं। कोई भी नरेशन अगर आपको नहीं आए तो आप उससे पूछ सकते हैं, बुक में से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज बाय बिजनेस फ्रॉम प्रोप्राइटर ऑन हिज ड्राइंग। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो प्रोप्राइटर के लिए तो लॉस है, इसलिए कैपिटल अकाउंट रिड्यूस होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और बिजनेस के लिए वो इनकम है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकॉर्डेड। ये थे अपनी एडजस्टमेंट एंट्री। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री की जाती है लास्ट ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर में रिकॉर्ड करने के लिए। इट इज मेड टू रिकॉर्ड द प्रीवियस ईयर बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल इनटू द करंट ईयर अकाउंट। तो इसको करने का तरीका है असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट का नेचर होता है डेबिट, टू लायबिलिटीज अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। जो भी आपको असेट गिवन है क्वेश्चन में वो सब डेबिट होंगी, जैसे कि प्लांट मशीनरी, फिक्स्ड असेट, डेटर्स के नाम गिवन है जैसे एक्स और वाई, तो वो अलग अलग डेबिट होंगे। लायबिलिटी में जो भी है आपके पास क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सब क्रेडिट होंगे। अगर क्रेडिटर भी है आपके पास, उनके नाम गिवन है एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो भी क्रेडिट होंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास बच जाएगा कैपिटल। अगर हमें कैपिटल गिवन नहीं है तो हम असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करके कैपिटल निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला भी आप लिख लीजिए। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, क्योंकि कैपिटल खुद एक लायबिलिटी है मगर उसके अलावा जो लायबिलिटीज हैं वो कहलाती हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो अगर हम असेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल। नोट डाउन द होमवर्क। टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11। 9, 10 एंड 11 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके साथ ही अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। कोई क्वेश्चन इसमें रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं उसको करवा दूंगा अगर उसमें कुछ टिपिकल होगा तो। 10th क्वेश्चन में जो 6th पॉइंट है, रिसीव्ड कमीशन ऑफ 20,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड टू एडवांस कमीशन, क्योंकि इस साल का कमीशन तो हाफ है और अगले साल का कमीशन हाफ है, तो 10,000 तो कमीशन में क्रेडिट हो जाएगा और बाकी का 10,000 एडवांस कमीशन में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो लायबिलिटी है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।